Good morning, students. Now we'll continue with the chapter that we had started yesterday, that is the triumph of surgery. Yesterday we had studied that the doctor had told Mrs. Pumphrey that she had to be little strict with Tricky. She had to manage his diet, she had to make him exercise, only then the things were going to work. Now we'll continue after that. Now the doctor, that is Mr. Harriet, was giving instructions to Mrs. Pumphrey, and very strictly he was giving the instructions. What he said, now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on very strict diet. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will. Mr. Harriet, I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. तो मिसेस पम्फ्री ने बोला कि तुम बात जो कह रही हो वो सही है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब करना. क्यों? क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत प्यार करती थी और उनको लगता था कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैम्पर करें, उसको खूब खाने के लिए देती थी और वो ना तो उसको एक्सरसाइज के लिए ले जा पाती थी. फिर भी उनकी बातों से डॉक्टर को ये लगा कि शायद ये हम उसी रूटीन को फॉलो करेंगी जो मैंने बताया है. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for wet days. So now you can see Mrs. Pumphrey कितना ज़्यादा उससे प्यार करती थी, कितना पैम्पर करती थी. He was a dog, but even then he was having a whole wardrobe of coats. कितने सारे कोट थे उसके पास, सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए रेनकोट अलग था. तो he struggled on, looping on his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और उसी वक्त उसको देख करके, डॉक्टर हैरियट को देख करके लग गया था कि जल्दी मिसेस पम्फ्री मुझे वापस से बुलाएंगी. और वही हुआ. कुछ दिन बाद वापस कॉल आया मिसेस पम्फ्री का, और वो इस बार बहुत परेशान थी. वो क्या कह रही थी, ट्रिकी वुड ईट नथिंग. वही बोल रही थी कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खाता है. सो दैट्स वाई शी हैड कॉल्ड Mr. Harriet. And what was happening? Tricky was even vomiting and lying all day and was just panting. उसको वॉक के लिए भी नहीं जा रहा था. तो डॉक्टर को तो पहले ही पता था कि ये सब होने वाला है, क्योंकि मिसेस हैरियट मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो उसने बोला कि अब इसको हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ेगा. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून मीन्स ऑलमोस्ट वो बेहोश ही होने वाली थी. इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी वो जब उन्होंने सुना कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे. उसको लग रहा था कि ट्रिकी उसके बिना, मिसेस हैरियट के मिसेस पम्फ्री के बिना कैसे रह पाएगा. But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. लेकिन डॉक्टर ने पहले ही सोच लिया था लेकिन कि मैं उसको लेकर के जाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है इसको ठीक करने का, क्योंकि इतना ज़्यादा वो बीमार हो चुका था. Then we move on to the next page where we find now Mrs. Pumphrey continued to cry. Even then the dog was put into the car, the doctor's car. और उसके बाद मिसेस पम्फ्री ने पूरे अपने स्टाफ को दौड़ने पे लगा दिया कि ट्रिकी का सारा सामान, उसका बेड, उसके कुशन, उसके टॉयज़, और यहाँ तक कि उसके बाउल्स जो हैं वो भी सब कार में डलवाए. और कार ऐसे लग रहा था कि पूरी तरह से भर गई थी वो ट्रिकी के पूरे सामान से. और मिसेस पम्फ्री एक तरफ खड़ी होके रो रही थी. Out on the road I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brief effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. और डॉक्टर को उसको देख के लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा परेशान हो गया था. अब डॉक्टर उसको सर्जरी में ले गया, तो वहाँ पे वेटरनरी हॉस्पिटल में ले गया. वहाँ पे और भी जो डॉग्स थे वो सब उस डॉक्टर को देखते ही वहाँ पर आ गए. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down
lay motionless on the carpet. अब ट्रिकी क्योंकि बीमार था, उसे सब डॉग्स की तरफ देखा, लेकिन फिर भी चुपचाप एक तरफ पड़ा रह गया वो. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. क्योंकि वो बिल्कुल आलसी और एक तरफ पड़ा हुआ था, तो बाकी डॉग्स को लगा कि कोई मतलब नहीं है इससे, तो उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपने वहाँ से चले गए. डॉक्टर ने उसके लिए एक बेड तैयार करा और उस पे वो पूरा दिन पड़ा रहता था. डॉक्टर पूरा ध्यान रखता था उसका, उसको कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया कुछ दिन तक. तो फिर उसके बाद में उसको लगा डॉक्टर को कि अब वो थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग गया है, थोड़ा इधर उधर चलने की कोशिश करता था और फिर उसको थोड़ा थोड़ा खाना देना शुरू करा. एंड देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीडेड ईटिंग. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. मतलब जब वो सारे डॉग्स को खाना देता था तो सब जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम फिनिश नहीं करेंगे तो दूसरे डॉग्स उसको खाने की कोशिश करेंगे. Then when they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, looking casually inside one or two of them. अब ट्रिकी क्योंकि कुछ ज़्यादा खाता नहीं था, तो सारे डॉग्स जब खा करके चले जाते थे, उसके बाद जो बचा होता था उसको थोड़ा बहुत खाता था. फिर उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया राइटर ने. फिर उसके बाद धीरे धीरे जो ट्रिकी है वो दूसरे डॉग्स के साथ उनकी तरह ही चलने फिरने लग गया, उनके साथ भागने लग गया और he became very active. And now he was in the company of so many dogs, that's why he was also feeling very fine. All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और मिसेस पाम्फ्रे क्योंकि वो बहुत परेशान थी ट्रिकी की वजह से, तो बार बार कॉल करके डॉक्टर से उसके बारे में पूछती थी. और फिर यहाँ तक कि उसके कुशन्स चेंज किए कि नहीं करे, उसको कोट प्रॉपर पहनाया कि नहीं पहनाया. एंड द डॉक्टर अवॉइडेड हर क्वेश्चन एंड व्हाट आई वाज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वालेसिंग रैपिडली. कन्वालेसिंग मीन्स ठीक हो रहा था. तो डॉक्टर ने बोला कि अब कोई डेंजर नहीं है उसको, अब वो बिल्कुल ठीक हो रहा है. फिर उसके बाद मिसेस पम्फ्रे ने खाने के लिए बहुत कुछ भेजना शुरू कर दिया. डजन्स ऑफ एग्स, देन cakes, wine, everything, whatever Tricky liked, it was sent. Okay. So what happened was that as those things were not eaten by Tricky, then the people over there, the staff of the surgery, they used to enjoy with it. Now lunch, it was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. So whatever the wine and the other things which were sent, they were used by the staff.